Good morning, students. How are you? Hope so. You all are well and safe at home. So, today, on 29th of June, in chemistry, with the same unit number 2, structure of atom. Now, we start the next topic, Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Actually, all the moving objects that we see around us, like that car, train, any of the planet, they moves along the definite paths. So macroscopic bodies moves along a specific or a definite path. But small objects like electron, the existence of the definite paths is not possible. So a German physicist known as Werner Heisenberg, actually his name is Werner Heisenberg, he was a German physicist. So Werner Heisenberg says that it is impossible to measure simultaneously the position and the momentum of a small particles with absolute accuracy. Means for small particles like that electron and electron like particles, we cannot measure simultaneously the position and momentum. With absolute accuracy. So if we have the small particles or we wants to take the absolute accuracy at the instant of the time for position and for the momentum, clear? So we cannot calculate at instant of the time with absolute accuracy of the position and the momentum. अगर हमारे पास कोई छोटा पार्टिकल है तो हम स्मॉल पार्टिकल्स के लिए एक टाइम में दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. हम पोजीशन अगर फाइंड आउट कर लेंगे एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ में, तो हम मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उस इलेक्ट्रॉन का. और उस अगर इलेक्ट्रॉन या उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अगर उस स्मॉल पार्टिकल्स का हम मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं उस टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ द टाइम, सो फिर उस टाइम पे हम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. लार्ज बॉडीज़ जो होती हैं, चाहे वो कार है, ट्रेन है, अगर हम खुद अपनी बात करें, अगर हम चल रहे हैं, हमारी कोई डेफिनेट पाथ है, तो उस टाइम पे उस डेफिनेट पाथ पे हम अपनी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. उस कार की पोजीशन बता सकते हैं, उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें तो स्मॉल पार्टिकल्स में ये दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट करना टिपिकल है. इलेक्ट्रॉन का मास इतना लेस होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स का मास इतना लेस. इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg नियर अबाउट. Can you assume -31 means 0.00000000 something. Then we write the 9 1. It means इतने small particles, इतने
लोअर मास की अगर हम बात करें तो अगर ऐसे पार्टिकल्स पे आसपास की अगर बात करें, जो उसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर रहा होगा तो उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा, और अगर हम चाहें कि उसकी हम पोजीशन बता पाए तो तेरे में अपनी वेलोसिटी चेंज कर देगा, अपनी पोजीशन चेंज करके पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे इतने में तो अपनी मोमेंटम चेंज कर देगा आउटर इफेक्ट की वजह से। इतने लोअर मास का पर जो इफेक्ट होगा वो आउटर इफेक्ट वर्किंग कर सकता है आसानी से। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक अगर कोलिजन कर जाए उससे इंस्टेंट ऑफ द टाइम, एक तो स्मॉल पार्टिकल जितने पोजीशन की फाइंड आउट करेंगे उतनी देर में क्या हो सकता है, मोमेंटम चेंज हो सकता है। सो फॉर स्मॉल पार्टिकल्स वी कांट बी कैलकुलेट बोथ द टर्म्स। सो अकॉर्डिंग टू वर्नर हिजनबर्ग, it is impossible to measure simultaneously the position and the momentum of small particles with absolute accuracy. If an attempt is made to the measure any one of these two quantities with higher accuracy, अगर दोनों में से किसी एक की higher accuracy के साथ में अगर measurement करें, the other becomes less accurate, तो एक की रिस्पेक्ट में दूसरे की accuracy less हो जाती है। So for that, Werner gives a mathematical relation delta x dot delta p is equal to h over 4 pi. This is the mathematical relation, whereas delta x represent uncertainty in the position. Or simply we can say the difference final and initial position. What is delta p? Delta p is a uncertainty in the momentum. Uncertainty in momentum. H is the Planck constant. We know that delta P represent to m dot delta V. It means we can write here delta x is delta x multiply m delta v is equal to h over 4 pi. Delta p, that is change in the momentum. We know that mass तो change होगा नहीं, क्या change होगी उसकी velocity. Momentum is mass into velocity. सो वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट में क्या चीज़ वेरिएबल हो सकती है, किसी का मास चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। तो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या होगी, डेल्टा वी की पोजीशन तो चेंज होगी, मास चेंज होगा, तो डेल्टा पी मीन्स एम डेल्टा वी। सो सी हियर h over 4 pi is the constant value, clear? It means delta x is inversely proportional to m delta v. Delta x is inversely proportional to m delta v. If we find out the exact accuracy of position, अगर हम पोजीशन की एक्यूरेसी को प्रॉपरली फाइंड आउट कर लें, मतलब इसकी वैल्यूशन अगर बहुत लो है, डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ली है, तो फिर इसकी वैल्यू हाई आएगी। अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेट फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू अगर में बहुत कम डिफरेंस आता है, मोमेंटम में बहुत कम डिफरेंस आता है, आपने एक्यूरेट पोजीशन अगर फाइंड आउट करी है, तो फिर उसकी एक्स पोजीशन जो है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी और उसमें एक लार्ज डिफरेंस होगा। क्लियर? सो एट इंस्टेंट ऑफ द टाइम वी कैन नॉट बी कैलकुलेट with accuracy the two positions, the two parts, position and momentum, and that is a part of Werner Heisenberg uncertainty principle. Clear? Any doubt? Thank you.